Good afternoon, students. In the previous video, we have studied about digestion in mouth cavity or buccal cavity. And today, we are going to study digestion in food pipe, in the stomach, in the small intestine, and in the large intestine. So we are starting from the esophagus. I am repeating the previous topic again. The digestion start in the buccal cavity. It is also called mouth cavity. Here in the mouth cavity, saliva digest starts into simple sugar. So digestion start from mouth cavity. Now, in the mouth cavity, the food is chewed and converted into fine paste. The saliva mixes in it, and it become a semi-solid material. The semi-solid material is passed into the esophagus in the form of bolus. Bolus means the small balls of the chewed food. So the bolus or chewed food is passed into the esophagus or food pipe. Food pipe, this is the mouth cavity, and from here the food pipe start and it reach to the stomach. So the food pipe is a muscular tube that connects the mouth cavity to the stomach. In the food pipe, the bolus travel down, reach to the stomach. Here the food pass by a wave-like motion that is called peristalsis. The wave-like motion of the food pipe is due to the contraction and relaxation of the food pipe. The food travel down by the contraction and relaxation of the food pipe. This wave-like motion of the buccal cavity of the food pipe is known as peristalsis. You can see here peristalsis. Now the food entered into the stomach. So in the stomach, the food remain for 4 hours. Approximately for 4 hours, the food stay here, and in the stomach, the walls of the stomach continuously contract and relax. By this moment, the food convert into a fine paste, and the stomach secretion also mix in the food very well. So in the stomach, what are the digestive juices, what are the secretion that mixed into the food? We will study about them. Stomach क्या है? Stomach is a muscular organ found in the upper left side of the abdomen. तो abdomen यानी उदर यानी पेट. तो स्टमक जो होता है एब्डोमेन यानी पेट के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ
एक मस्कुलर बैग है। swallowed फूड स्टे हेयर फॉर अराउंड 4 आवर्स, लगभग जो भोजन हम निगलते हैं वो 4 घंटे तक यहाँ ठहरता है। वॉल्स ऑफ द स्टोमक सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस। स्टोमक की वॉल्स से डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, एसिड रिलीज होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड म्यूकस ऑल्सो रिलीज। What are the function of these secretions? Digestive juice digest protein in the food to simpler substances. Digestive juice फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। द एसिड किल द जर्म्स दैट एंटर इन द स्टोमक विद द फूड। एसिड उन जर्म्स को मार देता है, उन पैथोजेंस को मार देता है जो फूड के साथ में स्टोमक में आ गए हैं। एसिड मेक्स फूड एसिडिक, एसिड फूड को एसिडिक बनाते हैं, उसको खट्टा कर देता है। फॉर इट्स डाइजेशन, इसके डाइजेशन के लिए, बिकॉज द डाइजेस्टिव जूस दैट आर सेक्रेटेड बाय स्टोमक दे एक्ट ओनली इन द एसिडिक मीडियम, यानी जो डाइजेस्टिव जूस स्टोमक में रिलीज होते हैं वो केवल एसिडिक मीडियम में ही कार्य करते हैं। इसलिए दूसरा फंक्शन एसिड का फूड को एसिडिक बनाना है। थर्ड सेक्रेशन इज म्यूकस। म्यूकस प्रिवेंट द एसिड टू कॉन्टैक्ट विद स्टोमक वॉल्स बाय मेकिंग ए कोट। म्यूकस एक कोट बना लेता है स्टोमक की इनर वाल पर और उसको एसिड के कॉन्टैक्ट में आने से बचाता है, क्योंकि स्टोमक जो होता है कोरोजिव होता है, वो जला सकता है। काइम, the stomach walls contract and relax, thus digestive juice mix in the food and food become semi-solid called chyme। स्टोमक की वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, ये कंटिन्यूसली ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। इससे डाइजेस्टिव जूस फूड में अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये सेमी सॉलिड बन जाता है और इसको हम काइम कहते हैं। After stomach, the food will pass into the small intestine. So we will study digestion and absorption in the small intestine. Almost 90% digestion and 100% absorption take place in the small intestine. The absorption of digested food take place in the small intestine, and most of the digestion take place in the small intestine. The most of the digestion take place in the small intestine, यानी अधिकांश कह सकते हैं कि लगभग 90% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। कुछ डाइजेशन स्टमक में हुआ है, कुछ माउथ कैविटी में हुआ है, और रिमेनिंग जो होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब एंड फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 मीटर लंबी एक संकरी और कुंडलित, कोइल्ड का मतलब कुंडलित ट्यूब है, फाउंड इन लोअर एब्डोमेन, जो निचले एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट है। तो अपर एब्डोमेन पार्ट में तो स्टमक है, लोअर एब्डोमेन पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड इज ऑल टेक प्लेस हेयर। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ होता है। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। बाइल जूस जिसका लीवर के द्वारा प्रोडक्शन होता है, विच इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस का सेक्रेशन करता है और गोल ब्लैडर में यह बाइल जूस स्टोर रहता है। बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट्स। बाइल जूस फैट्स का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स। टिनी ड्रॉपलेट्स में यानी उसका इमल्सन बना देते हैं। आप जानते हैं कि फैट जो होता है वाटर में डिजोल नहीं होता है, लेकिन बाइल उसको डिजोलेबल बना देता है। वाटर उसको बाइल जूस उसको वाटर में डिजोल करके उसका इमल्सन बना देता है। सो वी आर सेइंग द बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स, यानी फैट को टिनी ड्रॉपलेट्स यानी बहुत सूक्ष्म बूंदों में तोड़ देता है, विच कैन बी डाइजेस्टेड इजीली बाय एंजाइम्स, जिसको एंजाइम्स आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रेटेड by the walls of the small intestine break down fats into simpler substances that can be absorbed। तो डाइजेस्टिव जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से सेक्रेट होते हैं
वो फैट का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, ताकि इसका ऑब्जर्व कर लिया जाए। जो इसका बाइल जूस ने फैट को टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया, और डाइजेस्टिव जूसेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है वो फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, और फिर उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो फैट का जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आई एम टेलिंग इट अगेन, द फैट डाइजेस्टेड एंड ब्रेक डाउन into fatty acid and glycerol, protein digested and broken down into the amino acids, starch, carbohydrate break down into the glucose. So after digestion, the carbohydrate, protein and fats, it converted into simple substances that can be absorbed by the small intestine. The pancreatic juice break down starch into simple sugars. Pancreatic juice starch को simple sugars में convert कर देते हैं. Protein and fats into simple substances. इस starch को, protein को, fats को pancreatic juice जो है digest कर देते हैं, मतलब उसको simple substances में break down कर देते हैं, तोड़ देते हैं. अब हम बात करते हैं विली एक स्ट्रक्चर है जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. So what is the villi and villus? Villus is the singular form, it is the plural form. The inner wall of the small intestine have finger-like projections called villi. Inner wall पर small intestine की जो आंतरिक दीवार है उस पर finger-like projections होते हैं. Finger-like यानी अंगुली के जैसे. अब ये मत सोचने कि अंगुली जितने बड़े होते हैं, लेकिन शेप जैसी अंगुली की जैसी होती है. बहुत टीनी है वो, बहुत ही टीनी, वेरी टीनी. तो विली आर वेरी टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर के जैसे उभार हैं. किस पर हैं? इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पर. दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन. इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए. अब आप ये सोचिए, जैसे एक पर्वत है, तो जो जैसे एक पर्वत है, तो पर्वत एक छोटे से लैंड सरफेस में कितना बड़ा एरिया होता है, क्योंकि वो ऊपर उभरा हुआ है. पहले की ये अपवर्ड जाएंगे, फिर डाउनवर्ड आएंगे. अगर वो हटा दें वहाँ से वो पर्वत, तो केवल लैंड सरफेस को देखें तो उसका एरिया उस पर्वत के एरिया की तुलना में बहुत कम रह जाता है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विली होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कैसे करता है. यदि विली ना हो तो फ्लैट सरफेस मिलेगी, प्लेन सरफेस मिलेगी ऐसे. और इस पर यदि इस प्लेन सरफेस पर ऐसे उभरे हुए ऊपर की तरफ उभार हों सारी पर, टोटल पर, जो कि पूरी सरफेस पर होंगे, तो क्या होगा कि ये जो सरफेस एरिया है ये इसको मेजर करेंगे, और फिर जिसके ऊपर ये आउटग्रोथ हैं बाहर ऊपर की तरफ उभरे हुए, उसका सरफेस एरिया अब हम मेजर करेंगे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जहाँ आउटग्रोथ हैं उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है. सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट हैं. तो विली जो हैं इनका फंक्शन है ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन सरफेस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन तो कम्प्लीटली ही होता है. उसके बाद में बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. द अनडाइजेस्टेड फूड रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है. इन द लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस वाटर अलॉन्ग विद मिनरल एंड विटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी रह जाता है, उसमें मिनरल और विटामिन्स भी उस वाटर में रिजोल हैं. तो वाटर के साथ में, वाटर को तो एब्जॉर्व किया ही जाता है, साथ में मिनरल और विटामिन्स को भी एब्जॉर्व कर लिया जाता है. इतना सा फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. ओके, देन आफ्टर द अनडाइजेस्टेड फूड पास टू द रेक्टम, एंड in the rectum it remain for some time,
and after that it is pass out from the body by the anus. Defecation. The undigested food and waste is sent out of the body through anus. The process is known as defecation. ओके, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना इसे डेफिकेशन कहते हैं, मीन इसको हिंदी में कहीं तो मल उत्सर्जन कहते हैं.